احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آخری آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے اپنی تمام قدرت کے دلائل رکھنے کے بعد اس بات کا انسان سے شکوہ کیا کہ سارے دلائل قدرت دیکھنے کے باوجود یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ جس طرح اللہ کی ذات مشکل کشا ہے اسی طرح جنات بھی مشکلیں دور کرتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ نے ان جنات کو پیدا فرمایا۔ دوسرا شکوہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ کیا کہ یہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی، حالانکہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ جو دو شکوے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے اندر فرمائے، انہی کا جواب آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا بدیع السماوات والارض۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، لیکن جعل کا معنی بھی بنانا، خلق کا معنی بھی بنانا۔ بدیع کا معنی بنانے سے مراد ایسا بنانا کہ جس سے پہلے کوئی مٹیریل موجود نہ ہو، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی مٹیریل کے کوئی چیز تیار کر دینا۔ بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات آسمانوں کو اور زمینوں کو بنانے والی ہے، نئی طرح سے بنانے والی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، ابداع۔ ابداع کا معنی ہے کہ پہلے کچھ نہیں اور اللہ نے اس کچھ نہ کچھ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بنا دیا، یہ ہے صفت ابداع۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ آسمان بنانے کے لیے کوئی مٹیریل تو نہیں لینا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا دیا، پھر زمین بنانے کے لیے اللہ پاک نے کوئی چیزیں تیار کی اور ان سے زمین بنائی، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ ہے ابداع، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے موجد ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کام کرتی ہے جس کا نام ہے خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کے بعد اس زمین سے جو مٹی تھی اس کے ذریعے سے انسان کو پیدا فرما دیا۔ اس زمین پر آگ تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما دیا۔ یہ ہے صفت خلق، یہ ابداع کے بعد کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری صفت کام کرتی ہے جس کا نام ہے تدبیر۔ تدبیر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، پھر اس انسان کو
बहिफाजत जब तक इसकी उम्र है, जवानी की उम्र तक पहुँचाया, बुढ़ापे तक पहुँचाया और इसकी हर चीज़ का ख्याल रखा। यह है तदबीर। ज़मीन से पौधे को उगाया, फिर पौधा बड़ा किया, फिर उसके ऊपर फल लगाए, फिर उन फलों का ख्याल रखा, फिर वो फल पक गए, फिर इंसानों के काम में आए। ये है तदबीर। ये भी अल्लाह ताला की सिफत खासा है। तो अल्लाह ताला ने कल जो एक शिकवा किया कि वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलक़हुम, ये अल्लाह की ज़ात के साथ जिन्नात को शरीक ठहराते हैं, हालांकि अल्लाह ने इनको जिन्नों को पैदा किया। तो अल्लाह ने फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की ज़ात तो वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को सबसे पहले कुछ नहीं था उस वक़्त इनको पैदा फरमाया। तो जिनको शरीक ठहराते हो, बताओ इन्होंने क्या किया? इनका भी कोई हिस्सा है या सिर्फ इबादत के अंदर शरीक करने के लिए बनाए गए हैं? दूसरी जो अल्लाह ताला की तरफ से जो दूसरा शिकवा था उसका जवाब, अन्ना यकून लहू वलदुन, कैसे होगी उसके लिए औलाद? यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। मक्का मुकरमा के मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं। अल्लाह ने फरमाया अन्ना यकून लहू वलदुन, कैसे होगी उसके लिए औलाद? वलम तकुल लहू साहिबा, हालांकि नहीं है उसकी औरत, उसकी बीवी नहीं है, औलाद कैसे हो सकती है? अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से पाक है। व खलक़ कुल्ल शैइन, और बनाई अल्लाह ने हर चीज़। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही अल्लाह तुम्हारा रब है जिसकी इतनी प्यारी प्यारी सिफ़ात हैं, इब्दा, खल्क़, तदबीर, आलिम। यही अल्लाह तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद मगर वही। जिस अल्लाह की इतनी प्यारी प्यारी सिफ़ात हैं, जिस अल्लाह के पास कुदरत के इतने बड़े बड़े दलाइल हैं, वो अल्लाह रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खालिकु कुल्लि शैइन, हर चीज़ को पैदा करने वाला वही। फ़अबुदूहु, लिहाजा उसी की इबादत करो। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील, और वो अल्लाह हर चीज़ पर कारसाज है। ये आखिरी सिफत अल्लाह ने अपनी बयान फरमाई कि अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कारसाज। कारसाज का माना काम बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह की ज़ात ही काम बनाने वाली, तो फिर अल्लाह की ज़ात ही हकदार है कि वो माबूद बने, उसके अलावा और कोई माबूद बनने की हकदार नहीं है। और वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है, वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है, फरमाया ला तुद्रिकुहुल अबसार, नहीं इदराक कर सकती उसकी आँखें। आँखें, अबसार बसर की जमा है, बसर आँख को कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, इंसान के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात, सारी मखलूक़ात सब मिलकर अल्लाह का इदराक करना चाहें, अल्लाह को अपनी आँख में समोना चाहें, अल्लाह को अपनी आँख से देखना चाहें, अल्लाह ने फरमाया ये इदराक नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है। ला तुद्रिकुहुल अबसार, अल्लाह की ज़ात का इदराक नहीं हो सकता अबसार, आँखों के ज़रिए से। वहुवा युद्रिकुल अबसार, और वो इदराक करता है आँखों का। हमारी आंखें नहीं हैं जो हम अल्लाह को देख सकें, लेकिन अल्लाह की ज़ात के पास ताकत और पावर है कि वो हमारी आंखों को देख रही है। अल्लाह ताला के दीदार का मसला, दुनिया में अल्लाह ने किसी को ये ताकत नहीं दी कि बेदारी की हालत में अल्लाह ताला का दीदार कर सकें। हाँ, ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है,
और वो होता है अल्लाह वालों को। लेकिन बेदारी की हालत में अल्लाह ताला का दीदार कोई नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए तो वहाँ एक दरख्वास्त कर दी, रब्बी अरिनी, ए अल्लाह मुझे अपनी ज़ियारत करवा दीजिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के कलीम हैं, कलीमुल्लाह आपका प्यारा लक़ब है, जब उनके पास ये ताकत नहीं कि वो अल्लाह का दीदार कर सकें, तो और किसके पास ये ताकत हो सकती है कि वो अल्लाह का दीदार कर सके। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जहान के सारे इंसान और जिन्नात और फरिश्ते और शैतान जब से पैदा हुए जब तक पैदा होते रहेंगे, वो सब के सब मिलकर एक सफ़ में खड़े हो जाएं, तो सब मिलकर भी उसकी ज़ात का अपनी निगाह में अहाता नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात को सब मिलकर भी नहीं देख सकते। चाहे जाए कि एक बंदा देखे अल्लाह ताला की ज़ात को। ये दुनिया का मामला है। जहाँ तक मामला आखरत का है, वहाँ जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, जो नेमतें जन्नत में मिल चुकी हैं उनसे ज़ायद कुछ और चाहिए, बतलाओ, हम तुम्हें वो भी देंगे। ये लोग अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह आपने हमें दोज़ख से निजात अता फरमा दी, जन्नत में दाखिल फरमा दिया, इससे ज़्यादा हम और क्या चाहें। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे, ये पर्दे हटा दो। 70,000 पर्दे हटा दिए जाएंगे। सब लोगों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा और जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर सबसे आला नेमत अल्लाह का दीदार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात, चांदनी रात थी, आप तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मजमा था। आपने चाँद की तरफ नज़र फरमाई और फरमाया, आखरत में तुम अपने रब को ऐसे ही देखोगे जिस तरह आज चाँद को देख रहे हो। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार मुख्तलिफ़ अंदाज से होगा और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ अहवाल से होगा। कुछ जन्नती वो होंगे जिनको अल्लाह का दीदार हर जुमअतुल मुबारक को हुआ करेगा। कुछ लोग वो होंगे जिनको हफ्ते में 2 दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। कुछ लोग वो होंगे जिनको अल्लाह का दीदार दिन में 1 मरतबा रोज़ाना होगा। और सबसे आला तरीन जमात अम्बिया की और उसके साथ उनके मानने वाले नेक लोगों की ये सबसे आला जमात होगी जिनको अल्लाह का दीदार रोज़ाना सुबह और शाम जन्नत में हुआ करेगा। और दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में अल्लाह से मुलाकात फरमाई, अल्लाह का दीदार किया। ये भी चूँकि आप 7 आसमानों से ऊपर तशरीफ़ ले गए थे, वो भी मकाम आखरत है, इसलिए आपने आखरत के मकाम पर जाकर अल्लाह का दीदार किया। एक जवाब ये। दूसरा जवाब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है कि उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह का दीदार कर लिया और किसी को ताकत नहीं कि वो अल्लाह का दीदार कर सकें। एक अल्लाह वाले थे, उनका आखिरी वक़्त आ गया,
अल्लाह ताला के साथ प्यार इतना ज़्यादा था, अल्लाह के साथ मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने आखिरी वक़्त में ऐसी मोहब्बत अता फरमा दी, फ़रिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे का आखिरी वक़्त आ गया है, ज़रा पर्दे हटा दीजिए। जब इंसान का आखिरी वक़्त आता है तो आखिरत की तरफ से पर्दे उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे आमाल दुनिया में किए होते हैं वो इंसान के सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उस बंदे के सामने आखिरत के पर्दे उठने शुरू हुए। अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे सामने कर दिए और गैबी आवाज़ आती है, ऐ बंदे, ये जन्नत सामने है, 8 दरवाजे खुले हैं, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन उसका तो अल्लाह की ज़ात के साथ प्यार ही लाडला था। उन्होंने नज़र फेर ली और अर्ज़ कर दिया कि या अल्लाह, मैं तो सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत में तड़पता रहा कि कब आपका दीदार होगा, और आज आप मुझे जन्नत दिखा रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि अगर मैंने जन्नत के लिए सारी उम्र लगाई थी, मैंने तो अपनी उम्र ही ज़ाया कर दी। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जन्नत को हटा दो और मेरी तरफ से पर्दे उठा दो, अब अल्लाह का दीदार हो रहा है और ये बंदा दुनिया से जा रहा है। ला तुद्रिकुहुल अबसार, नहीं इदराक कर सकती उस ज़ात की अल अबसार, आँखें, वह युद्रिकुल अबसार, और वो अल्लाह की ज़ात इदराक करती है, अल्लाह पा सकते हैं आँखों को, वो सब की आँखों को देखते हैं। वह लतीफ़, और वो अल्लाह की ज़ात लतीफ़ है। लतीफ़ का एक माना बारीक से बारीक चीज़ को देखने वाली, और दूसरा माना मेहरबानी, मेहरबान। वो अल्लाह की ज़ात मेहरबान है। अल खबीर, ख़बरदार है। और दूसरा माना वो अल्लाह की ज़ात बारीक से बारीक चीज़ों की भी खबर रखने वाली है। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास, बसाइर, बसाइर का माना निशानियाँ, तुम्हारे पास निशानियाँ आईं, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फ़मन अबसर फ़लिनफ़्सिही, जिसने भी बसीरत हासिल कर ली, जिसने उस निशानियों को देख लिया, अमल कर लिया, फ़लिनफ़्सिही, वो उसके अपने वास्ते है। वमन आमिया, और जो अंधा रह गया, उस निशानियों को देख कर भी उस पर अमल न कर पाया, फ़अलैहा, उसका नुकसान उसी पर। जिसने अल्लाह की निशानियों को देखा और देखने के बाद उस पर अमल कर लिया और उस निशानियों से बसीरत हासिल कर ली, उसका अपना फ़ायदा, और जो अंधा बन के फिरता रहा उसको अपना नुकसान। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, आप इनको फरमा दीजिए, वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान नहीं हूँ। जिस तरह निगहबान का काम होता है ना, कि गलत करता है तो फ़ौरन उसको टोको, रोको और सीधा करो, सही करो, ऐसे नहीं है। आपकी ड्यूटी तो सिर्फ बात का पहुँचा देना है, आगे जो आमाल कर रहे हैं उसकी आपकी ड्यूटी नहीं है। वकज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति, इसी तरह हम फेर फेर कर लाते हैं आयतों को। नुसर्रिफ, बदल बदल कर, तरह तरह से लोगों को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं से हम बयान करते हैं। वलियक़ूलू, ताकि कहें वो लोग, दरस्ता, दरस्ता, तूने किससे पढ़ा है। मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते तो वो एतराज़ करते थे कि आप ख़ुद बना के ले आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, हम इनके इस एतराज़ को भी तोड़ रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से इनको समझाना चाहते हैं ताकि ये मजबूर हो जाएं और ये कहें कि ये इंसान के बस की बात नहीं कि ऐसा कलाम लाए जो मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमसे गुफ्तगू करे। वलियक़ूलू दरस्ता, और ताकि ये कहें कि तूने किससे पढ़ा है, तुझे कोई ना कोई पढ़ा तो रहा है। वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, ताकि वाज़े कर दें हम इसको ऐसी कौम के लिए जो समझदार हो, जो समझदार कौम है, हम उसके लिए वाज़े कर दें।
इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक, इत्तिबा करो उस चीज़ की जो वही की गई आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से। ला इलाहा इल्ला हो, नहीं कोई माबूद मगर वही। व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, और मुँह फेर लो मुशरिकीन से। ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सिखाया जा रहा है सहाबा इकराम को, सिखाया जा रहा है आने वाली उम्मत को कि सब के सब कुरान पाक की इत्तिबा करो, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मत मानो, और मुशरिकीन से मुँह फेर लो, मुशरिकीन के साथ उठना बैठना ख़त्म कर दो। जब ये आयत मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, आप मुशरिकीन से मुँह फेर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप तड़पते थे कि ये एक एक मुशरिक जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहते तो ये लोग शिरक ही ना करते। अगर अल्लाह ताला इख्तियार अपने पास रख के इख्तियारी तौर पर ज़बरदस्ती इनको सीधे रास्ते पे चलाते तो ये कभी कोई शिरक ही ना करता, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया दुनिया के अंदर। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, और नहीं बनाया हमने इन पर निगहबान, आपको इन पर निगरान नहीं बनाया। वमा अंत अलैहिम बिवकील, ना हमने बनाया आपको इन पर दरोगा, आपको हमने दरोगा भी नहीं बनाया, निगहबान भी नहीं बनाया। इसलिए आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप इन तक बात पहुंचा दें, आपकी अगली ड्यूटी नहीं है कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ख्वाजा अबू तालिब, वो आपकी परवरिश किया करते थे। आखिरी उम्र में वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए मरज़ुल वफ़ात में। मुशरिकीन मक्का ने आपस में बैठकर मशवरा किया कि हम जब भी इनको कोई तकलीफ़ देना चाहते हैं तो अबू तालिब दरमियान में रुकावट बनते हैं। इनका इंतकाल हो गया तो फिर हमने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया तो लोग कहेंगे देखो जी, जब तक अबू तालिब थे उस वक़्त तक तो कुछ नहीं कर सके, और उनके जाने के बाद उनके भतीजे को तकलीफ़ें दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। हम इनकी ज़िंदगी में ये मसला क्यों ना हल करवा लें। तो ये पंचायत लेकर एक वफ़द की सूरत में ख्वाजा अबू तालिब के पास आ गए मुशरिकीन मक्का, और आकर बातचीत की कि देखिए जनाब, आपका भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, इनसे बात करें कि ये हमारे बुतों को बुरा भला ना कहा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं बुतों की नफ़ी करूँगा। अब आखिर बात यहाँ पर आकर ख़त्म हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे बुतों को बुरा भला कहेंगे तो फिर आप आपके खुदा को बुरा भला कहें। यहाँ तक बात पहुँच गई। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ना तुम लोग बुरा भला कहो उनको जिनको वो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा जिन बुतों को पुकारते हैं तुम उनको बुरा भला मत कहा करो। फयसुब्बुल्लाह, फिर वो अल्लाह को बुरा भला कहेंगे, अदवन, बेअदबी की सूरत में, बिगैर इल्मिन, बगैर समझ की सूरत में। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो अल्लाह की ज़ात के साथ अपनी भड़ास निकालेंगे। और यही मामला आज दुनिया के अंदर होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा अपने वालिदैन को गाली ना दे। सहाबा अर्ज़ करते हैं, हुजूर अपने वालिदैन को गाली कौन देगा? फरमाया मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में से कोई है किसी के वालिदैन को गाली देगा तो वो मुकाबले के अंदर तुम्हारे वालिदैन को गाली देंगे, तो तुम सबब बनोगे अपने वालिदैन को गाली देने का। इसलिए हर ऐसी चीज़ जो कि सबब बन जाए गुनाह का, फितने का, उससे मना फरमा दिया गया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा इश्काल होता है कि कुरान पाक में तो अल्लाह पाक ने बुतों के बारे में ये बात इरशाद फरमाई और उनको बुरा भला कहा। कुरान पाक में आता है, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम भी
और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, हसब जहन्नम, ये सब के सब जहन्नम का ईंधन है। अब किसी बंदे को ये कहा जाए कि जनाब तू भी और जिनको तुम पूज रहे हो तुम्हारे सारे खुदा भी, ये सब के सब जहन्नम का ईंधन है, उसको कितनी चिढ़ आएगी, कितनी आग लगेगी उसको। तो जवाब इसका ये है कि कुरान पाक में जहाँ अल्लाह पाक ने ये बात इरशाद फरमाई, अल्लाह ने नसीहत देने के लिए इरशाद फरमाई, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं, समझाने के लिए इरशाद फरमाई। और अब भी फ़ुक़हा इकराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह फतवा है इस बात पर कि अगरचे कुरान पाक की आयत ही है ये, कि कुरान क्या कह रहा है कि ए मुशरिको, तुम भी और जिनको तुम खुद भी और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, ये सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अगर बंदा कुरान समझ कर पढ़ता है, नेकी का काम, सवाब का काम, कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर यही बात बंदा किसी को चिढ़ाने के लिए और किसी को जोश दिलाने के लिए, किसी के साथ दुश्मनी के लिए और किसी के साथ बुग़्ज़ रखते हुए उसके सामने खड़े होकर ये बात कहता है, फ़ुक़हा फरमाते हैं ये काम नाजायज़ है, हराम है, ये दुरुस्त नहीं है। अगरचे कुरान पाक की आयत है, लेकिन ये देखा जाएगा कि किस नीयत से कह रहे हो। कुरान पाक ने ये जो उसलूब इख्तियार फरमाया ये इस्लाह करने के लिए है, और तुम जो कर रहे हो ये दूसरे के साथ अदावत की वजह से है, ये दुरुस्त नहीं है। कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह हमने मुज़य्यन किया हर फ़िरके के लिए अमलहुम, उसका अमल। हर फ़िरका जो अमल कर रहा है वो उसके लिए खूबसूरत बनाकर पेश कर दिया गया। उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मुशरिक गैरों की पूजा करते हुए बड़ी खुशी महसूस करता है, हिंदू अपनी इबादत करते हुए बड़ी खुशी महसूस करता है, ईसाई अपने इबादत करते हुए बड़ी खुशी महसूस करता है। जो जो यहाँ लगा वो कहता है मैं ठीक हूँ। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर अपने रब की तरफ उनका लौटना है। फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून, फिर अल्लाह बताएगा उनको जो वो अमल किया करते थे, दुनिया में जो अमाल करते थे अल्लाह उनको बताएगा। अब आगे मसला ये आ गया कि मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन बातचीत की कि आप हमें सुनाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा पत्थर पर तो वहाँ से पानी के चश्मे जारी हो गए। आप हमें बताते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि पहाड़ फटा और वहाँ से ऊँटनी निकल आई। आप बताते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। आप भी नबी हैं, आप भी हमारी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखाइए, फिर हम आपको नबी मानेंगे। क्या देखना चाहते हो? बैतुल्लाह के पास सफ़ा पहाड़ी, जहाँ से उम्रे पर जाने वाला, हज पर जाने वाला सई शुरू करता है, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हैं। कहने लगे ये सफ़ा पहाड़ी सोने की बन जाए। ये मुंह मांगा मौजज़ा मांगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर तड़प इतनी ज़्यादा थी, अल्लाह से दुआ करने के लिए खड़े हो गए, ऐ मेरे अल्लाह, ये मुशरिकीन मक्का अपने बुतों को छोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर ये वाकई सोने की बन जाए, ईमान ले आओगे? कस्में उठाओ। सब ने कस्में उठा दी, पक्की कस्में, अगर ये सोने की बन जाती हम ईमान ले आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ कर दी। अल्लाह ने फरमाया हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये बात याद रखो कि ये आखिरी और हतमी मौजज़ा होगा। अगर मान गए तो ठीक, वरना हम इनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। दूसरी सूरत यह है कि हम इनको ज़िंदा रखते हैं और इनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखते हैं, शायद ये तौबा कर लें। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा मांगना छोड़ दिया कि ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला मौजज़ा अता फरमा देंगे, इनके ऊपर क्या एतबार है, ये फिर नहीं मानेंगे। व अक़्समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम,
वअक़समू और कस्में खाते हैं बिल्लाही अल्लाह की ज़ात की जहदा ऐमानिहिम पक्की कस्में, पक्की कस्में ताकीद के साथ कस्में उठाते हैं। क्या? लइन जाअतहुम आयतुन अगर आ जाए उनके पास निशानी लयुमिनुन्न बिहा तो वो ईमान ले आएंगे इस पर। निशानी कौन सी मांगी थी? कि कोहे सफ़ा सोने की बन जाए, हम ईमान ले आएंगे। कुल फरमा दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आयातु इंदल्लाह बेशक निशानियाँ तो सारी की सारी अल्लाह के पास हैं। वमा युशइरुकुम अब मुसलमान भी ख्वाहिश रखते थे कि अल्लाह ताला अगर ये निशानी दिखा देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख्वाहिश रखते थे निशानी दिखा देते हैं तो ये मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ने जवाब दिया वमा युशइरुकुम तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या शऊर, ए मुसलमानों तुम्हें क्या पता, अन्नहा इज़ा जाअत कि बेशक जब ये आ जाएगी निशानी ला युमिनून ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। तुम्हें क्या पता, ये मुंह से बातें करते हैं लेकिन ईमान फिर भी नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम हम उलट देंगे इनके दिलों को, व अबसारहुम और इनकी आँखों को, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा जैसा कि नहीं ईमान लाए थे पहली मर्तबा। जैसे शुरू में इनके सामने कुरान पेश किया गया, मुख्तलिफ मौजज़ात पेश किए गए और ये लोग ईमान नहीं लाए, अब दोबारा इनके सामने बड़ी सी बड़ी भी निशानी आ जाएगी तो वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम हम इनके दिलों को पलट देंगे, इनकी आँखों को पलट देंगे। इस्लाम की तरफ नहीं ये जा सकते। ये किस वजह से? ये इनकी सरकशी की वजह से, ये इनके गुनाहों की दलदल में फंस जाने की वजह से, गुनाहों में इस कदर फंस गए कि अब अल्लाह ने इनके ऊपर रास्ते ही बंद कर दिए। व नज़रुहुम और हम छोड़ देंगे इनको फ़ी तुग़यानिहिम इनकी सरकशी में, यामहून बहकते हुए, हम इनकी सरकशी में इनको बहकते हुए छोड़ देंगे और हम इनको हदायत पर नहीं आने देंगे। ये अल्लाह ताला ने गुस्से के साथ मुशरिकीन मक्का के बारे में फरमा दिया। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ऐसा बुरा वक़्त अल्लाह किसी पर न लेकर आए कि जब अल्लाह ताला उसके लिए हदायत के दरवाज़े ही बंद कर दें, हदायत के रास्ते ही बंद कर दें और ये फरमा दें कि हम इनके दिलों को और इनकी आँखों को फेर कर रख देंगे। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखला दी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले अपने दीन पर हमें साबित रख। सब्बित क़ल्बी मेरे दिल को साबित रख अपने दीन पर, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये दुआ याद कर लीजिए और सुबह शाम इसको पढ़ा कीजिए ताकि अल्लाह ताला प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें अपने दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।